Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. We are coming back after a long weekend and I hope you guys are as excited as I was while preparing this session. And आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट एवरी डे जब भी सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड आप भी पार्ट बन जाओ इस कंसिस्टेंसी में बिलीव करने वाले इनिशिएटिव का, जहां पर हम कंसिस्टेंट रहते हैं और हर दिन सिर्फ और सिर्फ लाइफ की 10 मिनट्स देख के हम ये सब चीज़ें गेन करते हैं. आई नो आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, बट अगर आपने ये हैबिट बनाई है रोज इस सेशन को देखने की, देन डो नॉट ब्रेक इट, बिकॉज एक हैबिट बहुत टाइम लेकर बनती है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉर्म दैट हैबिट. सो मेक श्योर कि आप इस हैबिट को कंटिन्यू करके रखोगे. डू नॉट ब्रेक इट ऑफ इन द मिडल. ओके, दैट वुड बी माई एडवाइस. नाउ कमिंग बैक टू द सेशन, रिसेंटली हमने एक वीडियो लेकर आए थे हम, विच इज defense based MCQs. So all your defense based MCQs are covered there. So जितने भी current affair में आपके defense based आए थे questions हमने सब cover करेंगे. आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी defense की exercises, जो arms और weapons आए हैं आपके, plus जितने भी आपके chiefs हैं in army, navy and air force सभी को discuss किया गया है. तो जाके वो सेशन ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. मेक श्योर टू चेक आउट दैट सेशन. इट इज़ a complete package of all the defense-based current affairs in these last 6 months. And if you're preparing for CDS and NDA, then it is very, very important for you guys. If you are prepared, you're confident enough, then take it as a revision. Okay? Coming back, हम आएंगे आज की पहली न्यूज़ पे. आज की पहली न्यूज़ है about your K-HEMA committee report. Now, recently, we all have seen what has happened in West Bengal, right? We have seen the horrific situation that happened there, the incidents that awakened the entire nation. Same thing, we are seeing a lot of, these things related to women exploitation. They are coming in a lot of spotlight as of now. There's a lot of spotlight on these events at present. And अभी आती है आपकी K-HEMA कमेटी की बात. K-HEMA कमेटी जो आपकी है, जो रिपोर्ट आई है यहाँ पर, दिस इज रिलेटेड टू योर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री. यहाँ पर इन्होंने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बात की गई है. बट अगर आप इसी एक बड़े स्केल पर देखोगे, देन यू रियलाइज दैट इट्स जस्ट नॉट अबाउट योर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, एनी अदर इंडस्ट्री or any other film industry. There could be situations where women are dealing with the same kind of situations as the Malayalam film industry is at present. Okay, so these kind of situations are happening and they have highlighted all of these. So pehle we're gonna study about all the problems that are there, or what are the actual incidents, reality check that is going on. Next we're gonna discuss about the recommendations about the changes that could be there. Okay, so now firstly we'll talk about what are the things that are highlighted in this particular report. So this K-HEMA committee report on the issue faced by women in the Malayalam film industry से relate करती है आपकी, published on Monday, 5 years after it was submitted to the Kerala government, revealed horrid tales of sexual exploitation, illegal bans, discrimination, drugs and alcohol abuse, wage disparity, and in some cases, inhuman working conditions are there. Okay, so these are the things that they have talked about. Let's discuss this entire report in a very simplified way. Okay, so see what they have talked about here. Firstly, आपका जो sexual exploitation की इन्होंने बात की गई है यहाँ पर, that a lot of women feel that they are sexually exploited in this particular industry. उनका यूज किया जा रहा है to get roles and all, and that is very, very insanely bad if you talk about inhuman as well. Plus, they have talked about illegal bans. So what are these illegal bans? So this report says a term, they are using this term basically mafias. So इन्होंने एक term लेकर आई है माफिया, जो इन्होंने यूज करी है. They have said कि इस इंडस्ट्री में आपके माफिया लोग ऑलरेडी हैं. They are super influential people, and if you do not do as they say, if you do not follow their rules,
and do not answer to their favors, then you will face a illegal ban there. So आपको ban कर देते हैं वो इंडस्ट्री से. अगर इन माफिया लोगों की आप जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, आप फॉलो नहीं करते हो, जो चीज़ें वो आपसे डिमांड करते हैं आप नहीं देते हो, तो आपको बैन कर देंगे इस इंडस्ट्री से एंड योर करियर विल एंड देयर. सो इसकी बात की गई जो वुमेन को वहाँ पे फेस करना पड़ रहा है. नेक्स्ट थिंग, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन. अगर हम बात करते हैं मेल फीमेल की, आपकी डिस्क्रिमिनेशन है, मेल फीमेल एक्टर्स की डिस्क्रिमिनेशन है, जूनियर सीनियर आर्टिस्ट की डिस्क्रिमिनेशन देखी जा रही है इस इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से दे हैव टॉक्ड अबाउट जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनको स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है एंड दे आर नॉट ट्रीटेड नाइसली, और यू कुड से bare minimum average नहीं दे रहे हो आप उन्हें. Then you have drugs and alcohol abuse. This is seen in a lot of industry and the same thing they have noted here. Then we have wage disparity that they have talked about. So wage disparity is one of the things that we see in almost all of this. All of our industries, there's a wage disparity when it comes to male and female, and that is very much present. जहाँ पर आप देखोगे the male actor is paid more than a female actress for the same role and the same movie with the same amount of box office collection and the same amount of budget. So this is always seen and this is not right at present. आपको इतना टाइम हो गया है इंडिपेंडेंट हुए और अब भी आप मेल और फीमेल को एक पार पे नहीं रख सकते हो, एक पैरिटी पे नहीं रख सकते हो. उनकी जो आपका जो पेमेंट है उसमें भी अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड है. देन दे हैव सेड दैट दे आर इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन. इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन के ऊपर बात की गई है. इन्होंने बोला है कि इन्हें 19 आवर्स तक काम कराया जा रहा है. दे मेड टू वर्क 19 आवर्स इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री and in not a very good working conditions. What are the working conditions that we are talking about? So the women have said that there are no proper changing rooms. आपके proper changing rooms नहीं है set पे. Then also if we talk about toilets, so इनके पास toilets नहीं है for women, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा infections देखने को मिल रहे हैं उन्हें. ठीक है, सो दैट इज़ नॉट प्रेजेंट. ये तो आपकी एक ह्यूमन कंडीशन है, ये आपको इन ह्यूमन कंडीशन में उन्हें रख रहे हो, विच इज़ नॉट नाइस एंड नॉट गुड एज वेल. सो दीज आर द थिंग्स दैट दे हैव हाईलाइटेड कि आपको ये चीज़ें वहाँ पर उन लोगों को फेस करनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री में. ऑल्सो द कमिटी कन्फर्म्स दैट द रूमर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ कास्टिंग काउच इन द इंडस्ट्री. सो कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें अभी तक है उस इंडस्ट्री में. अगर आपको पता है व्हाट इज़ कास्टिंग काउच, देन यू मस्ट नो कि कितनी ज़्यादा ख़राब है ये कास्टिंग काउच की सिचुएशन. एंड अभी तक अगर ये चल रहा है देन इट्स अ शेम फॉर अस, शेम एट द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन. एंड ऐसी जो आपके इंसिडेंट्स आ रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो अ शेम ऑन आवर नेशन. कि आप देखोगे कि विमेन की सिचुएशन कितनी ख़राब है हमारे नेशन में अगर हम बात करें. ऑल्सो कॉन्ट्री टू द अदर फील्ड्स, sexual harassment starts even before a woman starts working in the film industry, as demands for sexual favors are made by very well-known people in the industry in lieu of offering them roles. So यहाँ देखा जाता है कि sexual harassment आपकी पहले ही शुरू हो जाती है इंडस्ट्री एंटर करने से, बिकॉज वो आपसे जो काफ़ी well-known people हैं वो आपसे बहुत फेवर्स, सेक्शुअल फेवर्स मांगते हैं जस्ट सो दैट दे कैन गिव यू रोल्स. सो ये चीज़ देखी गई है आपकी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में. Shame on the society, shame on the industry and shame on the people that are doing such things. नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है कि आपके रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो आपके आर्टिस्ट हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है. जहाँ पर जो आपके एक्टर्स और टेक्नीशियंस हैं जितना उन्हें ओरली उन्होंने बोला है कि पेमेंट देंगे, द एक्ट इज नॉट गिवन. सो द प्रॉमिस्ड अमाउंट ऑफ मनी दे आर नॉट गिवन इवन आफ्टर डिलीवरिंग एवरीथिंग. प्लस यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है दैट देयर वाज अ विमेन एक्टर, यू कैन से अ जूनियर एक्टर, दैट गॉट बर्न्ड इन द पर्टिकुलर मूवी and she was not provided the funds for treatment as well. And the movie was not, if you're talking about the budget of the movie was around 70 crores. So the budget was way more, but they did not pay her for the burns that happened while filming. So, these are the situations that are present and these are literally situations अगर आप कंसिडर करते हो किसी भी पर्सन को या खुद को भी रख के देखते हो उस पोजीशन पे, तो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा ख़राब है. राइट, अब हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी. अगर हम बात करते हैं कि क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए हमारी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, सिंस वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, तो फर्स्ट थिंग तो आपके यहाँ पे रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स मैंडेटरी बनाने चाहिए होंगे. राइट, उनको एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स रखनी चाहिए प्रॉपरली, जहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि आपके इतने वर्किंग आवर्स होंगे एंड आपका इतने ही पेमेंट की जाएगी. ये पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए और रिटर्न होना चाहिए. प्लस जब ये कमेटी आई आपकी रिपोर्ट लेके, तो उन्होंने बोला कि ट्रिब्यूनल्स आने चाहिए आपकी. ठीक है, जो ट्रिब्यूनल्स आएंगे, ट्रिब्यूनल्स शुड कंसिस्ट ऑफ योर जजेस,
ओके, दे कुड बी जजेस, लाइक रिटायर्ड जजेस हो सकती हैं आपकी. उसमें विमेन मेंबर्स का होना कंपल्सरी है, विमेन जजेस का होना कंपल्सरी है इन पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल्स. एंड वो ट्रिब्यूनल्स डिसाइड करेंगे कि अगर ऐसे केसेस आते हैं तो कंसल्ट करें, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या स्टेप्स आगे लेने चाहिए, ये ट्रिब्यूनल्स डिसाइड करेंगे. और ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए ताकि लोग अपनी जो अपील है वो कहीं लेकर जा पाए. प्लस इन्हें जो आपकी सिविल कोर्ट के अंडर आने चाहिए इनकी जजमेंट. सो ये बात की गई है. गुड थिंग दैट दे हैव सेड. नेक्स्ट थिंग विच वुड बी माई रिकमेंडेशन यहाँ पे, द पोस्ट ट्रेनिंग शुड बी देयर. ओके, पोस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए. व्हाट इज दिस पोस्ट ट्रेनिंग? दिस इज योर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए. आप अगर किसी भी और फील्ड में जाओगे एक्सेप्ट फॉर फिल्म इंडस्ट्री, देन यू विल सी दैट पोस्ट ट्रेनिंग कंडक्ट करी जाती है वहाँ पर, जहाँ पर जो आपकी जो भी लोग हैं जो उस फील्ड को एंटर करने वाले होते हैं उन्हें पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है कि व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट, आप क्या चीज़ें कर रहे हो दैट कुड turn into sexual harassment, what are the things that will happen after you do that, so they should know the consequences as well. So ये चीज़ें आपकी फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंडेट कर देनी चाहिए towards the people that are working there. Okay, so these are the things that are said in this particular report. आपके क्या व्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आने चाहिए? या इट्स शेमफुल, बट या वी नीड टू चेंज, सो वी नीड टू एक्सेप्ट इट एज वेल. ओके, तभी आप चेंजेस लाओगे. अगर आप डिनाइल में रहोगे तो आप चेंजेस नहीं ला पाओगे. सो अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट्स में. ओके, योर व्यूज मैटर, सो प्लीज डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट न्यूज आई है आपकी अबाउट यूएस एंड साउथ कोरिया. अब आपको पता है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, द फाइट इज ऑलवेज देयर एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज नॉर्थ कोरिया. थोड़े से पागल लोग हैं ये, ठीक है. सो नॉर्थ कोरिया इज ऑलवेज अगेंस्ट देम एंड रिसेंट में देखा गया है कि साउथ कोरिया और यूएस ने अपनी एक ड्रिल कंडक्ट करी है, एक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, जिसको नॉर्थ कोरिया बोलता है कि ये आपका एग्रेसिव है और आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप हमारे यहाँ पे इन्वेड कर दोगे. नॉर्थ कोरिया की जैसी सिचुएशन है, नोबडी वांट्स टू इन्वेड देयर, नोबडी इज विलिंग टू लिव देयर एज वेल. ओके, सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग. हम पहले आ जाते हैं इंपॉर्टेंट थिंग पे. व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, जिस पे आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. सो द नेम ऑफ द ड्रिल और द एक्सरसाइज हियर इज उल्ची फ्रीडम शील्ड ड्रिल्स. ओके, सो ये आपकी होती है उल्ची फ्रीडम शील्ड ड्रिल्स एंड ये किसके बीच में होती है? यूएस एंड साउथ कोरिया के बीच में. पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है सिंपल क्वेश्चन आ सकता है आपकी. सो लेट्स रीड अ लिटिल बिट. US and South Korean troops kicked off a large-scale exercise on Monday aimed at strengthening their combined defense capabilities against nuclear-armed North Korea, which again accused the allies of practicing an invasion. So North Korea पागल है और वो बोल रहे हैं कि इन्वेट करना चाहते हैं हमें because of these exercises. Okay. Coming back, the Ulchi Freedom Shield drills, which continue for 11 days. 11 day की exercise होती है आपकी through your August 29, include both computer simulated war games and more than 40 kinds of field exercises only, including live fire drills conduct करेंगे ये लोग under this particular exercise. Then जो allies हैं आपके US and South Korea, this year program is focused on enhancing their readiness against various North Korean threats, including missiles, GPS jamming, cyber attacks, and will also reflect lessons learned from recent armed conflicts. So जो भी उन्होंने देखा है उससे enhance their capabilities. इसकी बात की गई है. आपके लिए important है name of this particular exercise. Star mark it, it's important. नेक्स्ट आते हैं हम CA पोर्शन पे. अब आपके ओलंपिक्स हो गए हैं, अब हम आ जाते हैं पैरा ओलंपिक्स पे और यही आपके अब रीसेंट में होंगे. कहाँ पर होंगे? ये आपके पेरिस में ही होंगे जहाँ पर आपके ओलंपिक्स हुई थी. राइट, इंपॉर्टेंट है. पैरा ओलंपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके एथलीट्स को कम मत समझिएगा. ठीक है, अब बात की गई है इस क्वेश्चन में, हु हैज बीन चोजन एज द फ्लैग बेयरर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ईयर 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स. ओके, सो हियर द आंसर इज सुमित अंतल. सुमित अंतल को चूज किया गया है एंड सुमित अंतल रिलेट्स टू जैवलिन थ्रो. ये जैवलिन थ्रो करते हैं आपके एथलीट. ओके, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पैरा ओलंपिक्स, थोड़ा सा ओलंपिक्स का भी रिविजन करेंगे हम यहाँ पर. ठीक है, अब ओलंपिक्स की बात की जा रही है तो आप ओलंपिक्स की मुझे बताओगे कमेंट्स में कि जो इनकी ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें कौन से 2 एथलीट्स थे जो आपके फ्लैग बेयरर्स थे. उनके नाम आप मुझे कमेंट्स में बताओगे. हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सो आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट आते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक्स पे थोड़ा सा और देखेंगे. देखो 17th एडिशन होगी. पहली बात ये आपकी समर पैरा ओलंपिक्स की फॉर योर डिसेबल्ड एथलीट्स.
कहाँ होगी? पेरिस फ्रांस में होगी आपकी फ्रॉम August 28 टू September 8, 2024 तक। ओके इससे पहले आपकी 33rd समर ओलंपिक्स हुई थी। कौन सा एडिशन था आपके समर ओलंपिक्स का? 33rd, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैस्कट जो इस बार की है आपकी फॉर पेरिस पैरालंपिक्स, दैट इज पैरालंपिक फाइज। ओके सो ये है आपकी इसकी पर्टिकुलर मैस्कॉट। एंड देन जो आपका इस बार का मोटो है फॉर 2024 पैरालंपिक्स, इट इज गेम्स वाइड ओपन, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ऑन द मोटो ऑल्सो। नेक्स्ट आएंगे हम, हु बिकेम द थाईलैंड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनती है आपकी। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, थाईलैंड की यंगेस्ट है, हर एज इज 37। ओके द नेम हियर इज पिथोंग शिनवात्रा। ओके यहाँ पर आप इनका नेम देख सकते हो, आपके लिए नेम इम्पॉर्टेंट है, यंगेस्ट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कौन सी आपकी कंट्री थी जिसकी यंगेस्ट थी? ठीक है, कौन बने थे यंगेस्ट? वो थे आपके फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में आए थे इससे पहले आपके यंगेस्ट, फ्रांस में बात की गई थी। ही इज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर फ्रांस की। ठीक है, एंड नेम इज गैब्रियल एटल एंड ही इज ऑल्सो ओपनली गे। सो वो भी आपकी न्यूज में रहे थे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट यंगेस्ट है। नेक्स्ट आप थाईलैंड देखेंगे। हम थाईलैंड यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज थाईलैंड आपका। इसकी कैपिटल है आपकी बैंकॉक। यहाँ पर है आपकी अंडमान सी, दिस इज योर इंडियन ओशन। देन यू कैन सी दिस इज गल्फ ऑफ थाईलैंड है। काफ़ी ज़्यादा आपका स्पॉट रहता है, बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट आते हैं आपके थाईलैंड में। उसके अलावा आप देख सकते हो किसी किसी बॉर्डर कर रहा है। PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, विच कमेमोरेटिव कॉइन was recently revealed by our defense minister Rajnath Singh on August 18 in China, चेन्नई में। ठीक है, तो चेन्नई में आपका ये हुआ था। My apologies here. The name here is centenary coin of Dr. कलानगर M. करनौदी। इनका कॉइन आया था, ये तमिलनाडु से रिलेट करते हैं आपकी, और इनका आपका कॉइन देखने को मिला था। नेक्स्ट आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे। फर्स्ट वर्ड है आपका रैट, which means very great anger. You could just say great anger or very angry here. Then we have proactive, which is make things happen instead of waiting for them to happen. So you all need to be proactive. Exam बहुत ज़्यादा नज़दीक है। Then we have lure, which is to persuade or trick somebody to go somewhere or to do something. Then we have rampant, which is existing or spreading everywhere in a way that is very difficult to control. जैसे आपका रीसेंट में भी आपका mpox बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा है, और जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा जगह आपने देखा होगा कि थ्रेड्स आ चुकी हैं इसकी। लास्टली हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे। यहाँ पर हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करेंगे। ठीक है, US और कनाडा को कौन सा आपका सेपरेट करता है? ठीक है, इसके अलावा हमने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की भी बात करी गई थी। सो वो आपका 38th पैरेलल सेपरेट करता है, ये मैंने आपको बता दिया। आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट्स में ज़रूर करना। यहाँ तक सेशन आपने देखा है तो कमेंट्स में सारे आंसर करना, क्या व्यूज़ हैं ज़रूर मेंशन करिएगा। लास्टली मेक श्योर टू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, कमेंट्स में सब चीज़ों के आंसर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमें। With that being said, we'll end the session here. Thank you for watching.